بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج جو ٹاپک ہم لرن کریں گے دیٹ از بیہیویئرل تھیوری آف لیڈرشپ. نہ صرف ہم بیہیویئرل تھیوری کو لرن کریں گے بلکہ ہم ڈفرنس بھی سمجھیں گے بٹوین ٹریٹ تھیوری اور بیہیویئرل تھیوری آف لیڈرشپ کا. آئیے سیکھتے ہیں. What is behavioral theory? Behavioral leadership theory argues that success of a leader is based on their behavior rather than their natural attributes, as it was developed scientifically by conducting behavior focused studies. Behavioral theory of leadership کہتی ہے کہ ایک لیڈر کی سکسیس ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر بائی بورن ایٹریبیوٹس ہوں تو ہی وہ اس کو لیڈر بنائے گی. لیڈرز کین بی میڈ، ان کو بنایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر خدا داد صلاحیتیں ہوں گی جو گاڈ آپ کے اندر خوبیاں بھیج رہے ہیں اور صرف انہی خوبیوں کی بنیاد کے اوپر آپ لیڈر بنیں گے. اس کے علاوہ جن کو گاڈ نے لیڈر بنا دیا نو ون ول بیکم لیڈر. ایسا نہیں ہے. لیڈرز کین بی میڈ. The theory emphasizes that leadership capability can be learned rather than being inherent. اس تھیوری کے مطابق لیڈرشپ کی جو کیپبلٹی ہے، صلاحیت ہے، وہ لوگوں کو سکھائی جا سکتی ہے، لوگوں کو لیڈر بنایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ انہیرنٹ ہی ہو، آپ کہیں پیدائشی لیڈر بن کر آ رہے ہو، ایسا نہیں ہے. تھیوری کی assumption کیا تھی؟ لیڈرز کین بی میڈ. یس، لیڈرز کو بنایا جا سکتا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے ہیومنز بیہیویئرز کی، انسانی رویہ، انسانی کردار. اور اس سے مراد کیا ہے؟ ریفرز ٹو دی رینج آف بیہیویئر ایگزیبٹڈ بائی ہیومنز اینڈ وچ آر انفلوئنسڈ بائی کلچر، ایٹیٹیوڈ، ایموشنز، ویلیوز، ایتھکس ایز ویل ایز اتھارٹی اینڈ سم ادر پیرامیٹرز. انسانی بیہیویئر جو ہے، انسانی کردار جو ہے، وہ بہت سارے پیرامیٹرز کی بیسس کے اوپر بنتا ہوتا ہے. وہ کس کلچر میں رہتا ہے، اس کا گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، اس کے پاس نالج کیسا ہے، کس طرح کی سوسائٹی میں رہتا ہے. یہ سارے فیکٹرز مل کر اس کا ایک بیہیویئر ڈیولپ کرتے ہیں اور اسی بیہیویئر کی بیس کے اوپر اس کا ایک کریکٹر بنتا ہے اور وہی کریکٹر وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. اگر آپ اس کے اس بیہیویئر کو، اس کے ان پیرامیٹرز کو اگر آپ ٹیون اپ کر دیں، ڈیولپ کر دیں، لوگوں کے لیے فیوریبل بنا دیں، تو الٹیمیٹلی اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا ہو سکتی ہیں. تو کسی حد تک یہ تھیوری ٹھیک بھی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یس، لیڈرز کین بی میڈ، کہ وہ لوگ اگر جو بائی بورن لیڈر نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتے. یس، دے کین بی میڈ لیڈرز. Researchers exploring leadership role have come to the conclusion that to operate organization, leaders effectively need to perform two major functions: people-oriented function and task-oriented function. Researchers نے جو ایکسپلور کر رہے تھے لیڈرشپ رول کا، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ بہت سی ریسرچرز نے لیڈرشپ کے رولز کو جب ایکسپلور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک آرگنائزیشن کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے یا ایک اچھی لیڈرشپ افیکٹونیس کے لیے دو مین فنکشنز پرفارم کیے جاتے ہیں. ایک ہے پیپل اورینٹڈ فنکشن اور دوسرا ہے ٹاسک اورینٹڈ فنکشن. آئیے دیکھتے ہیں کیا. سب سے پہلے ہے پیپل اورینٹڈ، مینز لوگوں سے متعلق. People-oriented leader focus on behaviors that allow them to meet the needs of the people they interact with, including supervisors, employees, and clients. They are primarily driven by interpersonal connection and communication. Behavioral theory یہ کہتی ہے کہ وہ لیڈر جو پیپل اورینٹڈ ہوتے ہیں، means they have a concern for the people. وہ سمجھتے ہیں کہ یار ویلیو آف ہیومن وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ جنرل مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ زندگی کے کسی بھی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، یاد رکھیے 5 M's بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ 5 M کون سے؟ مین، مٹیریل، میتھڈ، مشین، منی. اب آؤٹ آف دیز 5 آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے، بتائیے کون سا M سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ مین. ایبسولوٹلی رائٹ. انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے.
बिहेवियरल थ्योरी ये कहती है कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं या जो लीडर्स कैन बी मेड के कॉन्सेप्ट के ऊपर रहते हैं, वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं। वो समझते हैं कि लोगों की अहमियत ज्यादा है। आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं तो लोग आपके लिए काम भी करेंगे, दे विल गिव यू 100%, वो एक्स्ट्रा माइल भी जाएंगे। आपका उनके साथ एक इंटरपर्सनल कनेक्शन वो बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी बननी बहुत जरूरी है। और कनेक्टिविटी बनाने के लिए किसी के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों के साथ। और जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो फिर आपको लोगों की बात को सुनना है, समझना है, और सुनना उनको जवाब देने के लिए नहीं है, बल्कि उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ सुनना है जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ वो आपके साथ बात कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है। जब आप ऐसा करेंगे तभी वो लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे एंड दे विल गिव यू द बेस्ट। पीपल ओरिएंटेड लीडर्स बिल्ड रिलेशनशिप विद देयर टीम मेंबर्स टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म वेल। अब यहां पे वही बात कि जो पीपल ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं वो अपने लोगों के साथ एक ताल्लुक पैदा करते हैं और वो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये वो क्यों करते हैं? ताकि वो लोग मोटिवेट रहें। क्यों मोटिवेट रहे? टू परफॉर्म वेल। जो अल्टीमेट टास्क उनको दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो बेहतर तरीके से करें, या समवेयर एल्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की भी जनरल लाइफ की भी बात कर लें तो वो लोग उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। जो पीपल ओरिएंटेड लीडर्स हैं, लोगों के साथ वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो उनके मसाइल को हल करते हैं, वो उनके मेंटोर भी होते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्यों करते हैं? ताकि लोग उनके साथ कनेक्टेड रहें और वो जब भी उन्हें कोई काम बताएं या कोई टास्क दे, दे विल परफॉर्म वेल। दूसरा जो फंक्शन है इस थ्योरी के मुताबिक, दैट इज टास्क ओरिएंटेड, काम के हवाले से। टास्क ओरिएंटेड लीडर्स आर प्राइमरली फोकस ऑन सेटिंग गोल्स एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। Task oriented leaders thrive in a well structured environment and often show authoritarian behavior. अब ये बात टोटली पीपल ओरिएंटेड के ऑपोजिट है। मींस के जो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ फोकस किस चीज के ऊपर होता है? काम के ऊपर। वो लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं बस आई नीड द जॉब डन, मुझे अपना सिर्फ काम चाहिए। वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड एक पूरी हायरार्की बनी होती है और ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके मुताबिक वो चल रहे होते हैं। और उनको पता होता है किसने क्या काम करना है, होम टू रिपोर्ट, और किसने किसको रिपोर्ट करना है। और वो अपने इस वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। और उनका मेन काम क्या है कि जस्ट गेट द जॉब डन। उन्हें लोगों की लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है, उनको उनके पर्सनल मैटर से कोई कंसर्न नहीं है। वो कहते हैं कि बस दे आर बीइंग पेड, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनका काम है सिर्फ हमें सर्व करना, और वो अल्टीमेटली आपको अपनी आउटपुट दें। और जिस तरह ये लास्ट में लिखा भी हुआ है कि समहाउ उनका बिहेवियर अथॉरिटेरियन होता है। वो अमूमन लोगों को टेलिंग स्टाइल के ऊपर चल रहे होते हैं कि सिर्फ वो अपनी बात बता रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने बोला है, लोग उसको मनोअन तस्लीम कर लें और उसके अकॉर्डिंगली कंप्लायंस करें। They are typically more focused on their team final results rather than day-to-day development process. वो लोगों की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, या डेली बेसिस के ऊपर उनको मोटिवेट नहीं करते, या डेली बेसिस के ऊपर वो छोटी छोटी चीजों को नहीं देखते। वो अल्टीमेट टास्क के ऊपर, अल्टीमेट गोल के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं जिसको उन्होंने अचीव करना होता है। और उसी में उनका मेन कंसर्न है, अपना तमाम पोटेंशियल भी वो उसी में लगाते हैं। क्यों? जस्ट कि हमारा टास्क जो है, हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, नाउ वी लर्न द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। दोनों की डेफिनेशन और यहां अजम्पशन को देखते हैं। ट्रेड थ्योरी कहती है कि लीडर्स आर बॉर्न, जबकि बिहेवियरल थ्योरी कहती है लीडर्स आर मेड। ट्रेड थ्योरी के मुताबिक कि लीडर्स जो हैं उनके अंदर बाय बॉर्न ऐसी सलाहियतें होती हैं जो उनको लीडर बना देते हैं। वो परसुएसिवनेस हो सकती है, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी हो सकती है, उनकी अच्छी कम्युनिकेशन, आवाज, उनकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, उनकी पर्सनैलिटी अपीयरेंस बहुत इंप्रेसिव हो सकती है, एटसेट्रा। जो वो शायद अपने वेट में, हाइट में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये खुदादाद उनके अंदर सलाहियतें। जबकि बिहेवियरल थ्योरी कहती है कि अगर कोई बाय बॉर्न लीडर नहीं है तो वो क्या लीडर नहीं बन सकता? जो आप पॉइंट्स, ट्रेड्स हाईलाइट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेड थ्योरी, क्या वो लोगों को नहीं सिखाए जा सकते? क्या लोगों की एनालिटिकल स्किल नहीं बढ़ाई जा सकती? यकीनन बढ़ाई जा सकती है। क्या लोगों को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाई जा सकती? यस, इट कैन बी टॉट। लोगों को क्या
टीम बिल्डिंग स्किल्स नहीं सिखाई जा सकती? यस, इट कैन बी. सो दोनों थ्योरीज का अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपनी अपनी कंजम्पशन है, जो अपनी अपनी जगह दुरुस्त भी है. इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप क्या है? ट्रेड थ्योरी कहती है कि लीडरशिप की इफेक्टिवनेस बेस करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स के ऊपर. फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने अभी कहा, उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर, उसके लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर, एटसेट्रा. जबकि बिहेवियरल थ्योरी कहती है कि ये जो इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप है, ये बेस करती है उनकी लर्न स्किल्स के ऊपर. उन्होंने क्या सीखा है. अगर किसी ने अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी है तो वो बहुत ज्यादा असर करेंगी लोगों के ऊपर. किसी ने अच्छी जो है सपोज वो टीम बिल्डिंग स्किल्स सीखी हुई है तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा टीम बिल्डिंग के अंदर. इसी तरह ट्रेड थ्योरी कहती है यूज ऑफ फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स, उनका भी एक बड़ा इंपैक्ट होता है. किसी की हाइट है, किसी का वेट है, तो वो उसकी लीडरशिप इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करेगा. मसलन जो टॉल हाइटेड लोग होते हैं, अमूमन उनको लोग क्लास में सीआर बना देते हैं, ऑफिस में उनको लीडर बना देते हैं, बिकॉज वो थोड़े से बड़े बड़े नजर आ रहे होते हैं. वो कहते हैं नहीं यार ठीक है, इनके साथ कौन आर्ग्यू करेगा, बल्कि डर जाएंगे लोग आगे से मार ही ना दे. तो ट्रेड थ्योरी कहती थी कि फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स आपके वो भी अफेक्ट करते हैं आपकी लीडरशिप इफेक्टिवनेस को. जबकि बिहेवियरल थ्योरी कहती है कि अगर कोई नहीं है टॉल हाइटेड, नहीं है किसी का वेट ज्यादा, तो वो क्या लीडर नहीं बन सकता? क्या यही वो ट्रेड्स होंगे? क्या उसके फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स डिसाइड करेंगे वो लीडर बन सकता ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है. बल्कि और भी बहुत सारे जो है ट्रेड्स हैं जो उसको सिखाए जा सकते हैं. ये खूबियां उसको दी जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं थ्रू मेंटोरिंग, थ्रू गाइडिंग, थ्रू टीचिंग, जिससे वो अपनी लीडरशिप स्किल्स को बिल्ड कर सकता है और उनकी एक्सरसाइज कर सकता है. उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच.